سب سے پہلے بات کریں گے کمشنر کراچی کی، جنہوں نے عوام کی ایک نہیں سنی۔ ناجائز منافع خور بے لگام گوشت مافیا کو عید تک کھلی چھوٹ دے دی۔ چاول اور دالوں پر ریٹیلرز کو 5% منافع لینے کی اجازت دے دی۔ گوشت کی قیمت برقرار، نئی قیمت کا فیصلہ عید تک مؤخر کر دیا۔ آٹا 30 روپے کلو سستا، دودھ کی قیمت کا معاملہ کمیٹی بنا کر لٹکا دیا۔ چینی کی قیمت سے متعلق بھی فیصلہ نہ ہو سکا۔ شوگر ملز کے نمائندوں نے اجلاس میں شرکت کرنا بھی گوارا نہ کیا۔ تفصیل دیکھیے اس رپورٹ میں۔ بنیادی اشیاء کی قیمت میں کمی کے لیے اجلاس، انتظامیہ کی بے حسی برقرار، عوام کو ریلیف نہ مل سکا۔ دودھ، آٹے، چینی اور گوشت کی قیمت کم کرنے پر ہونے والے اجلاس محض رسمی کارروائی ثابت ہوئے۔ ڈیری فارمرز دودھ کی قیمت کرنے پر راضی نہ ہوئے بلکہ مزید مہنگا کرنے کا مطالبہ رکھ دیا۔ ڈیری اینڈ کیٹل فارمرز کے دودھ مہنگا کرنے کے مطالبے پر محض کمیٹی بنا دی گئی۔ صدر مبشر قدیر نے کہا 1 ہفتے بعد نوٹیفیکیشن جاری نہ ہوا تو قیمت از خود بڑھا دیں گے۔ بان بھی تھے اور کمشنر صاحب نے یہ بات کیا کہ بھائی 1 ہفتے کے اندر جو ہے ورکنگ کر لو ڈی سی ملیر کے ساتھ، اور اس کے ساتھ میٹنگ کے بعد جو بھی ریٹ زمینی عقائد کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں گے وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو دیے جائیں گے۔ امید کرتے ہیں کہ 1 ہفتے کے اندر نیا نوٹیفیکیشن ہوگا اور یہ جو وائلیشن ہے اور جو معاملات ہیں یہ طے پا جائیں گے۔ منسٹر صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے بقرعید سر پر ہے، مال تو ابھی مہنگا ہوگا، لاکھوں جانور قربانی کے لیے شارٹ ہو جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے انہوں نے صلح رحمی کرتے ہوئے ہم سے کہا کہ آپ کو 2 مہینے بعد دوبارہ بلایا جائے گا، پھر آیا ریٹ طے کیے جائیں گے، جو ابھی آپ چلا رہے ہیں اس کو چلاتے رکھیں۔ دالیں، چاول اور مسالہ جات رکھنے والے دکانداروں کو 5% منافع رکھنے کی اجازت مل گئی۔ مسالہ جات ایسوسی ایشن کے جنرل سیکرٹری قادر نورانی کا کہنا ہے کہ کمشنر نے چاول اور دالوں پر ریٹیلرز کو 5% منافع رکھنے کی اجازت دی ہے۔ اس طرح ہمارے گرم مسالے کے ریٹ تھے، الحمدللہ سپلائی ان بیورو کی بھی ورکنگ تھی اور کنزیومر رائٹ والوں کی بھی ورکنگ تھی، الحمدللہ اس نے ہمارے ریٹ پہ متفق ہوئے، لیکن جیسے ہمارا پیور چیز کے ریٹ تھے، ہم نے جو ریٹ دیے الحمدللہ وہ کمشنر کراچی نے مانے۔ دالیں اور چاول میں بھی ظاہر سی بات ہے تو ڈومین ان کا رؤف بھائی کا، لیکن جو کہ نہیں آ سکے تو میں بتا رہا ہوں کہ انہوں نے کمشنر کراچی نے مطلب ان کی اچھی پوری ساتوں جتنے ضلع تھے نا سب کے ڈی سی موجود تھے، لیکن پروفٹ بھی اچھا دیا ہے، ریٹیل والوں کو 5% پروفٹ دیا ہے۔ جو بھی ریٹ ہوگا نا دال کا اس سے 5% پروفٹ ریٹیل والوں کو۔ آج جو کمشنر آفس کے ساتھ جب ڈسکس ہوئی انہوں نے اس بات کو اون کیا اور دے کمیٹڈ کہ آج سے یہ جو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی پہ جو نوٹیفیکیشن ہو رہا تھا اس کو کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے کل سے جو صارف ہے ہمارا جو اس کو سستی پرائس جو پرائس ہوگی اس کو کل اس سے فائدہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ آٹے کی قیمت میں معمولی کمی، عوام کو دھوکہ یا پھر دیگر اشیاء سے توجہ ہٹانے کا ہتھیار۔ ہول سیل اور ریٹیل میں آٹے کی قیمت 30 روپے کلو کی کمی کر دی گئی۔ پاکستان فلور ملز ایسوسی ایشن سندھ کے چیئرمین چودھری عامر نے بتایا علاقائی دکانوں پر آٹا 98 اور ہول سیل میں 92 روپے کلو پر دستیاب ہوگا۔ جی جیسا کہ آپ جانتے ہیں امپورٹڈ گندم آنے سے پہلے آٹا 150-160 روپے کلو تھا۔ جیسے امپورٹڈ آئی ہے ویٹ سپٹمبر اکتوبر سے، اس کے بعد آٹے کا ریٹ 120-25 روپے کلو ہو گیا، اور اب نئی فصل بھی آ گئی ہماری اللہ کی مہربانی سے۔ آج جو آٹے کا ریٹ ڈیسائیڈ ہوا ہے 98 روپیز ریٹیل کا ریٹ ہے، 90 روپیز ایکس مل ہے، 98 ریٹیل ہے، 2.5 نمبر چکی آٹے کا ریٹ، جو ایک بہت عوام کے لیے بڑی کمی ہے۔ کہ شوگر ملز ایسوسی ایشن کے نمائندے بھی اجلاس میں شریک نہیں ہو سکے۔ کیمرامین اور رپورٹنگ ٹیم کے ہمراہ کاوش میمن، سٹی 21۔ چینی کی قیمت سے متعلق اجلاس بے نتیجہ ختم ہو گیا۔ کین انسپیکٹر آصف عزیز نے کہا کہ قیمت 140 روپے کرنے کی بات ہوئی لیکن حتمی فیصلہ نہیں ہو سکا۔ انہوں نے مزید کیا کہا یہ سنتے ہیں۔ ابھی جو فیصلہ 138 سے 140 ہوا ہے، لیکن جو فائنل فیصلہ ہوگا ابھی 4 بجے ایک فائنل میٹنگ ہوگی، کنزیومر ایسوسی ایشن سے بھی لوگ آئیں گے اور باقی ڈی سی وغیرہ آپس میں بیٹھ کے ڈیسائیڈ کریں کیا ریٹ ڈیسائیڈ ہونا چاہیے، کیونکہ ابھی مختلف ڈسٹرکٹ میں مختلف ریٹ چل رہے ہیں، تو ابھی جو انیشیل ڈیسائیڈ ہوا ہے وہ 138 سے 140 ہوا ہے۔ کراچی میں میٹرک کے امتحانات کے دوسرے روز بھی نقل مافیا سرگرم، امتحانی پرچہ قبل از وقت سوشل میڈیا کی زینت بن گیا۔ میٹرک بورڈ کے ٹیم نے مختلف امتحانی مراکز کے دورے کیے۔ چیئرمین میٹرک بورڈ سید شرف علی شاہ کا کہنا ہے کہ نقل مافیا کے خلاف کارروائی کے لیے سخت ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ احمد خان کی رپورٹ۔ میٹرک امتحانات میں نقل مافیا کا راج، بورڈ انتظامیہ کے تمام حربے ناکام ہو گئے۔ دوسرے روز بھی حل شدہ پیپر لیک ہو گیا۔ میٹرک کا کمپیوٹر اسٹڈیز کا پرچہ شروع ہونے سے پہلے ہی واٹس ایپ کی زینت بن گیا۔ چیئرمین میٹرک بورڈ نے بھی مختلف اسکولز کے دورے کیے۔ گورنمنٹ
बॉयज़ स्कूल नॉर्थ नाज़िमाबाद के स्कूल के दौरे के दौरान मीडिया से गुफ्तगू में शरफ अली शाह ने कहा कि जिन स्कूल्स के पर्चे लीक करने और नकल करने की शिकायत मौसूल हुई हैं, वहां शिकायत के हवाले से कोई सबूत नहीं मिले कि फ़लाँ सेंटर से पेपर लीक हुआ या फ़लाँ सेंटर पे जो है कापी हो रही है। तो हमने मिनिस्टर साहब के अहकामात पर जो है वहाँ पे विज़िट किया, मैंने खुद भी, और मिनिस्टर साहब ने एडिशनल सेक्रेटरी को वहाँ पे भेजा, तो वहाँ कोई भी जो है ये चीज़ प्रूव नहीं हुई। तो मैं आज जो है वो मीडिया के वसात से ये तमाम लोगों से, सिविल सोसाइटी से अपील करूँगा, बड़ा मेहरबानी अफवाह न फैलाएं, अगर कहीं से भी कोई इत्तला है तो उसका प्रूफ लाया करें। गुज़िश्ता रोज़ भी कंप्यूटर और जनरल साइंस के पर्चे लीक हो गए थे। इम्तिहानी सेंटर में भी नाकिस इंतजामात की शिकायत सामने आई हैं। कैमरामैन हसनैन जाफरी के साथ आइमा खान, सिटी 21। यहाँ बात करेंगे सिंध के तालीमी बोर्ड एडहॉकिज़म का शिकार संगीन नतायज सामने आने लगे। जामिया NED के दाखिला टेस्ट ने तालीमी बोर्ड्स की कारकर्दगी की कलई खोल दी। इंटर साल अव्वल में 70 और 80% से ज़ायद नंबर लेने वाले तलबा की अक्सरियत दाखिला टेस्ट में नाकाम हो गई। दाखिला टेस्ट में आगा खान तालीमी बोर्ड के नताइज सबसे बेहतर रहे, जिसके तलबा के नताइज की कामयाबी का तनासुब 84.71% रहा। फेडरल बोर्ड की कामयाबी का तनासुब 73% रहा। कराची बोर्ड के नताइज 67.64% रहे, जबकि अंदरून सिंध के तालीमी बोर्ड की सूरत हाल इंतहाई ख़राब रही। शहर में तजावुज़ात के खिलाफ शहरी इंतज़ामिया ने डंडा उठा लिया। KMC महकमा इंसदाद तजावुज़ात का FP एरिया हुसैनाबाद के अतराफ ऑपरेशन। फूड स्ट्रीट से तजावुज़ात का खात्मा कर दिया गया। जुनेद जावेद की रिपोर्ट देखिए। हो या रात, तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाइयाँ होंगी लगातार। आयशा मंजिल और हुसैनाबाद में तजावुज़ात का खात्मा कर दिया गया। ऑपरेशन असिस्टेंट कमिश्नर गुलबर्ग अहमद मुर्तज़ा की सरबराही में किया गया। इस मौके पर अहमद मुर्तज़ा ने पथारेदारों को कर दिया खबरदार कि अब अगर तजावुज़ात लगाएं तो सख्त एक्शन होगा। पुलिस को भी निगरानी के लिए पाबंद कर दिया गया। हमने इसमें आइडेंटिफिकेशन यही की है कि मेन जो थॉरोफेयर रोड्स हैं और जहाँ पर हॉस्पिटल्स और एम्बुलेंस की आमदोरफ्त में मसले होते हैं, प्रायोरिटी हमने उनको रखा है। और अभी जिस तरह आपने कहा आज का ऑपरेशन भी शुरू है, मुज़ामत फ़िलहाल तो नहीं हुई, थोड़ी बहुत स्कर्मिशेस जो लोगों ने की है वो की है, लेकिन हमें उन्हें तंबी की है कि जिस तरह हम आज यहाँ पर ऑपरेशन करें उसकी वजह क्या है। आप पीछे देख सकते हैं बहुत बड़ा यहाँ पर हॉस्पिटल है, 2-3 हॉस्पिटल्स हैं इनफैक्ट सारे रोड पे। वहाँ पर एम्बुलेंस की आमदोरफ्त में मसला होता है, मरीज़ बेचारे जो है वो परेशान होते हैं। इलाका मकीन भी KMC के डायरेक्टर सेंटर कामरान अलवी ने कहा कि जो सामान जब्त किया उसे किसी सूरत दोबारा नहीं छोड़ेंगे। टेबल, कुर्सियां और पथारे स्टोर मुंतकिल किए हैं। ये जो एक हफ्ते का टाइम हमने ज़िला बस्ती में रखा था, जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और कमिश्नर कराची साहब की जो एक्सेशन थी, मेयर कराची साहब की, उसके सिलसिले में आज हम गुलबर्ग डिवीज़न के अंदर काम कर रहे हैं हुसैनाबाद पे। इसके बाद हम शहर पाकिस्तान के मेन रोड क्लियर करेंगे, रोड, फुटपाथ और वो। जिला बस्ती में हफ्तावार ऑपरेशन का बुध को आखिरी रोज था, ताहम जुमेरात से जिला शर्की में कार्रवाइयों का आगाज होगा। जुनेद जावेद, सिटी 21। KMC के महकमा इंजीनियरिंग की एक बार फिर नवाब सदीकी अली खान रोड के फुटपाथ को कट निकालने की कोशिश और इलाका वाम ने नाकाम बना दी। हंगामा आरआई पर असिस्टेंट कमिश्नर नाज़िमाबाद ने काम बंद करा के अमले और मशीनरी को पुलिस की तहवील में दे दिया। रिजवान अहमद की रिपोर्ट। मैट्रिक बोर्ड ऑफिस के करीब नवाब सिद्दीक अली खान की मेन और सर्विस रोड के दरमियान फुटपाथ को काट कर रास्ता निकालने की नाकाम कोशिश की गई, जिस पर अवाम ने एहतजाज किया, जिनका कहना था कि गैर कानूनी कट हादसात, जराइम और ट्रैफिक जाम का सबब बनेगा। पहले भी हो चुका है, ये उसको रुकवाया था, आपकी नॉलेज में आपने उस पर भी वर्किंग की थी, इसको पहले भी रुकवाया था। आज सुबह 9 बजे इत्तला मिली कि फिर मशीनें लग गई हैं दोबारा और यहाँ काम हो रहा है। सुबह 9 बजे से हम कोशिश में थे इसके, फिर DSP साहब भी आए, AC साहब खुद आए और उन्होंने काम को बंद किया, मशीनरी को जब्त किया है। आप यहाँ देखें कि कितनी सारी आवाम यहाँ से गुजरती है। हमारे इंस्टीट्यूट है, स्टूडेंट्स बहुत सारे आते हैं, बहुत सारे मामलात हैं, स्नैचिंग यहाँ पे होना शुरू हो जाएगी, यहाँ पार्किंग का हमारा इशू हो जाएगा। तो ये चीज़ हमने इस वक्त जो है इसका एहतजाज किया है और इसको बंद कराने के किया है। तो हमारी अपील है इस वक्त मुर्तज़ा वहाब साहब से कि इसको काइंडली ज़रा लुक आफ्टर करें और ये चीज़ जो है ना ख़त्म कराई जाए। फुटपाथ को हैवी मशीनरी से उखाड़ने के दौरान बरसाती नाले और PTCL की केबल को भी नुकसान पहुँचा। इससे तो प्रॉब्लम इतनी होगी, अभी आगे बारिश है, जब बारिश होगी एक्सीडेंट होंगे, लोग गिरेंगे, मरेंगे, बच्चे छोटे गिरेंगे, सारा मामला ख़राब होंगे। इनको किसी चीज़ का एहसास नहीं है।
इनको चाहिए ये बंद करें, और ये बंद करे बगैर भाग गए। शहरियों ने मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब से मुतालबा किया है कि कवायद के बरअक्स फुटपाथ को काट कर रास्ता निकालने वाले महकमा इंजीनियरिंग के अफसरान और अमले के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। कैमरामैन कयूम शेख के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। अदम अदायगी पर वाटर कॉरपोरेशन का पेट्रोल डीजल बंद हो गया, जिससे शहर में किया जाने वाला सीवरेज कॉरपोरेशन खतरे में पड़ गया। पेट्रोल पंप मालिकान का अदम अदायगी पर सख्त रद्द-ए-अमल सामने आ गया। ईंधन न मिलने से शहर में सीवरेज कॉरपोरेशन खतरे में पड़ गया। वाटर कॉरपोरेशन के वर्कशॉप से जेंटिंग और सेक्शन मशीनें फ्यूल ना होने के बायस रवाना नहीं की जा सकी। पेट्रोल पंप मालिकान कहते हैं कि वाटर कॉरपोरेशन पर करोड़ों रुपए के वाजिबात हैं जो अदा नहीं किए जा रहे। अब तक वाटर कॉरपोरेशन ने 10 करोड़ से ज़ायद बकाया जात रोके हुए हैं। अदायगी न हुई तो ईंधन की फ्राहमी बंद रहेगी। वाटर कॉरपोरेशन को शहर के मुख्तलिफ मकामात से 6 पंप्स फ्यूल फराहम करते हैं। सिंध सेक्रेटरीट का शाहरा कमाल अतातुर्क को तवील अरसे बाद आम शहरियों के लिए खोल दिया गया। अब शहरी बआसानी कबूतर चौक से पीपल्स स्क्वायर तक जा सकेंगे। आज़ाद नहोड़ियों की रिपोर्ट। वालों के लिए खुशखबरी, अरसा दराज से बंद शाहरा बिलाखिर खुल गई। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर शाहरा कमाल अतातुर्क को खोल दिया गया। शाहरा कमाल अतातुर्क को 1992 में सिंध सेक्रेटेरिएट के अकब में मार्टर हमले के बाद सिक्योरिटी खदशात के बाइस बंद किया गया था। शाहरा को बंद करने से डिलेक्स बस C1 का रूट भी खत्म कर दिया गया और ये बस भी चलना बंद हो गई। अदालती हुक्म पर शाहरा को खोलने पर शहरियों ने मिले जुले रद्द अमल का इजहार किया है। कोई खुश दिखाई देता है तो कोई सिक्योरिटी खदशात से परेशान है। कोई रुकावट नहीं है तो जरूरी है, लोग आते जाएंगे, सहूलत है उनके। फ़ायदा तो बड़ा है, शहर को बड़ा फ़ायदा है, तो इसलिए शाहरा खोलना चाहिए। ये हदीस रसूल है कि लोगों के लिए रास्ता दो, आसानी पैदा करो लोगों के लिए बजाय मुश्किलात पैदा करने। पहले सुप्रीम कोर्ट का फैसला, लेकिन ये शाहरा जो है ना सिक्योरिटी मामला है, सरकारी दफ्तर हैं, एक तो रेड जोन है। सर ये बहुत अभी अच्छा अमल हुआ है, पर मुझे नहीं लग रहा है ये कुछ टाइम के लिए ये फिर खोला जाएगा, फिर ये दोबारा बंद हो जाएगा। ये पहले भी कोर्ट उनको बोल चुकी है ये खोला जाए, ये आवाम के लिए आसानी हो जाए, तो फिर ये कुछ टाइम के लिए ये कोर्ट का अमल करते हैं, फिर ये वही बंदी करेंगे। शाहरा कमाल अतातुर्क को खोलने के बाद सिक्योरिटी के इंतजामात को मामूल की निस्बत सख्त किया गया है ताकि अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार रखी जाए। कैमरामैन गुलफाम शेख के साथ आज़ाद नोडियो, सिटी 21। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में उतार चढ़ाव। दिन के अख्ताम पर 100 इंडेक्स में 159 पॉइंट्स की कमी 72,601 की सतह पर बंद हुआ। तफसीलात अयाज राना की इस रिपोर्ट में। स्टॉक मार्केट में सरमायाकारों का मोहतात अंदाज, मार्केट में मनफी इख्तिताम। स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी की जानिब से कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज मुनाफे को तरजीह दी, शेयर्स की फरोख्त जारी रखी, जिसके बायस मार्केट में कम तरीन सतह 72,058 रही। सुबह के वक्त 100 इंडेक्स में तेजी का रुझान भी रिकॉर्ड किया गया। एक वक्त में 100 इंडेक्स 73,079 की बुलंद सतह तक ट्रेड हुआ। दिन के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स 169 पॉइंट्स की कमी से 72,601 की सतह पर पहुंच गया। आज मार्केट में 23 अरब रुपए मालियत के 96 करोड़ शेयर्स का कारोबार हुआ। अयाज राना, सिटी 21। इथोपियन सफ़ीर ने मुल्की सरमायाकारों को अपने मुल्क में सरमायाकारी की दावत दे दी। इथोपिया के सफ़ीर जमाल बकर अब्दुल्ला का घाटी का दौरा। इथोपिया में ज़राअत, मैन्युफैक्चरिंग, फार्मास्यूटिकल, सर्जिकल आलात, कानकुनी और सियाहत के शोबों में सरमायाकारी के वाफिर मौक़े हैं। दोनों ममालिक की मुआशी खुशहाली के लिए मिलकर काम करना होगा। खुर्शीद रहमानी की रिपोर्ट देखिए। इथोपिया के सफीर जमाल बकर अब्दुल्ला ने कोरंगी ट्रेड एंड इंडस्ट्री का दौरा किया। दौरे का मकसद कराची के ताजिरों को इथोपिया में तिजारत के हवाले से रोड मैप से मुतालिक आगाह करना था। इथोपिया के सफीर जमाल बकर अब्दुल्ला ने कहा कि सरमायाकारों को अफ्रीका में काम करने की जरूरत है क्योंकि वहाँ सरमायाकारी को तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। इथोपिया ग्रीन इकॉनमी और ग्रीन लेगेसी इक़दामात के तहत 98% क्लीन एनर्जी पैदा करता है। इथोपिया उन मुल्कों में से है जहां इस वक्त बहुत बड़ा एक्सपोर्ट पोटेंशियल है। मैं सब फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चर से ये कहूँगा, टेक्सटाइल मैन्युफैक्चर से कहूँगा, फूड मैन्युफैक्चर जैसे राइस है, इसकी बहुत बड़ी मार्केट है इथोपिया में। इसके अलावा आप ये देखें कि जो हमारे पास प्रोसेसिंग प्लांट्स हैं, जैसे कि इथोपिया ने इस वक्त शुरू की है राइस प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर में आगे आ रहे हैं, मगर एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसने एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग में बहुत काम किया है पिछले 20 सालों में। तो वो लोग जो यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग में महारत हासिल करते हैं, उन लोगों के लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो जाएँ और ऐसी मार्केट्स को टैप करें। इथोपिया के एजाजी कौंसल जनरल इब्राहिम खालिद तवाब ने कहा कि
पाकिस्तान को इस वक्त ट्रेडिंग पार्टनर की जरूरत है। इथोपिया इस वक्त राइस प्रोसेसिंग यूनिट्स पर काम कर रहा है। इसके अलावा इथोपिया की कामयाब फ्लाइट ऑपरेशन जारी है, जो कराची से इथोपिया 4 घंटे की फ्लाइट है। This is very critical actually, life saving. Pakistan have got a comparative advantage in this sense because Ethiopia is importing huge, pharmaceutical, around 85 up to 90% we are importing. That is why Pakistan has reached self-reliance on the pharmaceutical product. Let's this is a big opportunity for pharma industries, surgical equipment, so we can work along this line. कोरंगी ट्रेड एंड इंडस्ट्री में इथोपिया की हुकूमत की जानिब से सरमायाकारी के माहौल में डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई गई। काटी के सदर की जानिब से मेहमानों को एजाजी शील्ड और गुलदस्ता भी पेश किया गया, जबकि इथोपिया के सफीर की जानिब से खूबसूरत मस्जिद की तस्वीर और कॉफी का तोहफा पेश किया गया। कैमरामैन आगा रफीक के साथ खुर्शीद रहमानी, सिटी 21। पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। नौजवानों के अंदर पोशीदा सलाहियतों को सामने लाने का अज़्म। इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट का तलबा और तालिबात के लिए डिस्कवर योरसेल्फ के नाम से सेमिनार का इनेकाद। मुख्तलिफ शोबाजात में तजर्बा रखने वाले बिलाल हसन कामयाबी हासिल करने के गुर सिखाए। को ज़माने से कैसे मनवाया जाए, अपनी छुपी हुई सलाहियतों को कैसे सामने लाया जाए, मुस्तकबिल में कामयाबी का रास्ता कैसे ढूंढें। इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट का सेमिनार सब कुछ सामने ले आया। इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट के डिपार्टमेंट कंप्यूटर साइंस का तलबा और तालिबात के लिए डिस्कवर योरसेल्फ के नाम से सेमिनार का इनेकाद। मोटिवेशनल स्पीकर और कैरियर काउंसलर बिलाल हसन ने सेमिनार में मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। बिलाल हसन ने यूनिवर्सिटी के तलबा और तालिबात की अपने कीमती तजर्बे के जरिए रहनुमाई की। तालिबात के सवालों का जवाब देते हुए पैगाम दिया कि हमें अपने वतन को बुरा नहीं कहना बल्कि खुद को बदलना है। बात ये कि भाई ये ना बोले कि पाकिस्तान ने कुछ नहीं दिया, क्योंकि अगर आप पाकिस्तान से भी बाहर गए ना तो पाकिस्तानी पासपोर्ट पे गए थे और आपको वहां पे जो एडमिशन मिला, हाँ, और वो जो आपको एडमिशन भी मिला तो वो भी उन्हीं डिग्रीज की वजह से मिला जो कि आपने पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी से पढ़ा। तो ये पे असल में जो आर्ग्यूमेंट है ना वो आता है कि पाकिस्तान ने दिया क्या, और भाई सब कुछ दे दिया तभी तो आगे बढ़ गए। सेशन के ऑर्गेनाइजर प्रोफेसर वजाहत और डॉक्टर फातिमा रियाज ने कहा, नए आने वाले तलबा के लिए ऐसे मजीद सेशन मुनक्किद करेंगे जो कि इंटरएक्टिव हों। कंटिन्यूसली स्टूडेंट के विजिट होने चाहिए और स्पीकर को इनवाइट करना चाहिए। ये इंटरेक्शन लर्निंग प्रोसेस में प्ले अ वाइटल रोल, बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इसमें ये जो है ना ये लोग लर्न करें। ऐसा सेशन था कि बहुत इन्फॉर्मेटिव था, बहुत अच्छा था, जहाँ पर हम लोग काफ़ी अच्छी चीज़ों को हमने डिस्कस करा और बहुत बेसिक था, मतलब बहुत इन्फॉर्मल सा एक सेशन था जहाँ पे बच्चे आराम से इजीली बात कर सकते थे और ऐसे सेशन होते रहने चाहिए। तलबा और तालिबात ने सेशन को सराहा और कहा कि ऐसे सेमिनार से हमें जिंदगी का मकसद पता चलता है। 4 साल के लिए जो है ना हमें मोटिवेशन मेंटेन रखनी है और ये है कि बहुत मज़ा आया और हमें बहुत कुछ सीखने को मिला इस इंटरव्यू से। मैं पहले थोड़ी कंफ्यूज थी कि बीबीए करना भी चाहिए क्योंकि काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं कॉमर्स स्टूडेंट्स के पास, वो क्या क्या कर सकते हैं। तो इस सेशन से आपको क्लैरिटी ये मिली कि आपको पता चला क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं ऑफ ईच डिपार्टमेंट, आप कहाँ जा सकते हैं, आप अपनी कैपेबिलिटीज़ आप जानें और उसको अंडरस्टैंड करते हुए कोई अपना फ्यूचर करियर के लिए कोई स्टेप उठाएं। सेशन में कंप्यूटर साइंस के तमाम डिपार्टमेंट्स के HODs और तलबा ने शिरकत की। पहली हज परवाज़ आज रात जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट से रवाना होगी, जबकि डायरेक्टर हज इम्तियाज़ शाह कहते हैं कि हुज्जाज को सहूलियात फराहम करने के लिए रोड टू मक्का के तहत इमिग्रेशन का सिलसिला आसान कर दिया गया है, जबकि दौरान हज आज़मीन को होटल से हरम तक ट्रांसपोर्ट की सहूलियात फराहम कर दी गई हैं। ये रोड टू मक्का ये है कि जो वहाँ पे जाके हुज्जाज की इमिग्रेशन और कस्टम वगैरह होता था तो उसके लिए तो आपको पता है कि बड़ी लंबी लाइनें लगती थी, 4 घंटे 5 घंटे तो आराम से उनके लग जाते थे। अब ये जो हुज्जाज यहाँ से जाएंगे, ये सऊदी अरब ने यहाँ पे अपने काउंटर्स इस्टेब्लिश किए हैं और अपना इमिग्रेशन सिस्टम यहाँ पे ले आए। इसमें यह है कि यहाँ से ये इनकी इमिग्रेशन भी हो जाएगी, कस्टम भी हो जाएगी। जब ये लोग जाएंगे मक्का मदीना मक्का पाक या अपना जिद्दा जाएंगे तो ये बस सामान उठाएंगे और चले जाएंगे, वहाँ पे उनको कोई लाइन की ज़रूरत नहीं, बल्कि सामान भी उनको बिल्डिंग में मिल जाएगा। डायरेक्टर FIA कराची जोन ज़ाहिम इकबाल ने एयरपोर्ट का दौरा किया। इनको हज ऑपरेशन के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। इमिग्रेशन अमले को आज़मीन हज को बेहतरीन खिदमात फ्राहम करने के लिए खुसूसी हिदायत दी। डायरेक्टर FIA कराची जोन ज़ाहिम इकबाल ने एयरपोर्ट का दौरा किया है। बात करेंगे अनुषा जाफरी से, बताइएगा। डायरेक्टर FIA ज़ाहिम इकबाल शेख का हज ऑपरेशन 2024 की निगरानी के लिए कराची एयरपोर्ट का दौरा किया गया है। डायरेक्टर FIA कराची जोन की
एयरपोर्ट हुकाम से मुलाकात भी की गई। डायरेक्टर कराची जोन को हज ऑपरेशन के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। डायरेक्टर कराची ज़ैम इकबाल ने रोड टू मक्का ऑपरेशन का भी जो है वो जायजा लिया है। इमिग्रेशन की रवानगी और केम सिग्नल के हवाले से ब्रीफिंग दी गई है। इमिग्रेशन अमले को आज़मीन हज को बेहतरीन खदमात फराहम करने के लिए खुसूसी हिदायत जो है वो जारी की गई है। जबकि डायरेक्टर FIA कराची जोन ने कहा है कि हज परवाजों के दौरान खुसूसी काउंटर्स जो है वो चलाए जाएंगे। इमिग्रेशन क्लियरेंस के अमल को जो है आसान बनाया जाए। बुजुर्ग शहरियों के लिए इनकी मजहबी सफर को बेहतरीन सहूलियात से आरास्ता किया जाए। डायरेक्टर FIA ने कहा है कि इमिग्रेशन अफसरान की हज ऑपरेशन के दौरान हाजिरी को यकीनी बनाया जाए। किसी किस्म की गफलत या लापरवाही की सूरत में सख्त कानूनी कार्रवाई भी जो है वो अमल में लाई जाएगी। जी बहुत शुक्रिया अनुषा, आपने हमें अपडेट किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।